بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائیں۔ آج کی کہانی ہے چار ہنرمندوں میں۔ کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا جو بہت غریب تھا اور مشکل ہی سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس آدمی کے چار بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے، مگر وہ سب کے سب بیکار تھے۔ کوئی کام کاج کرنے کے بجائے صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے۔ جب ان کا باپ ان کی مسلسل بیکاری سے تنگ آ گیا تو ایک روز چاروں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، میرے بیٹو، مجھ میں جب تک ہمت تھی میں نے محنت مزدوری کرتا رہا اور تمہارا پیٹ پالتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چاروں بیٹے خاموشی سے اپنے باپ کی بات سن رہے تھے اور بوڑھا کہہ رہا تھا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا کی وسیع دنیا میں جاؤ اور اپنی قسمت آزمائی کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا جو اس وقت سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں نصیحت کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے تم لوگوں کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ چاروں جاؤ اور الگ الگ کوئی ایسا ہنر سیکھو جس سے تم دنیا میں ترقی کر سکو۔ جاؤ اور اب اپنی دنیا خود بناؤ۔ چاروں بیٹوں نے باپ کی بات سنی اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ ایک ساتھ بولے، ابا جان، ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ یہ کہہ کر چاروں بھائیوں نے اپنا اپنا مختصر سامان باندھا، پھر اپنی اپنی گٹری کندھے پر رکھی اور چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ۔ اس طرح چاروں بھائی گھر سے رخصت ہو کر اپنی اپنی قسمت آزمائی کرنے کے لیے چل نکلے، اور چاروں ایک ساتھ سفر پر چلے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور کدھر جانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے سفر پر رواں دوا تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں راستہ چار مختلف راہوں میں بدل گیا تھا۔ یہ چاروں راہیں الگ الگ ملکوں کی سمت جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر چاروں بھائی رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، چار راستے ہیں اور ہم چار بھائی ہیں، ہمیں ایک ایک راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے سوچتے رہے۔ آخر بڑا بھائی بولا، اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ دوسرے تینوں بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے کہا، ایک بات یاد رکھو، آج سے ٹھیک 4 سال بعد ہم سب کو اسی چوراہے پر آ کر ملنا ہے۔ اس دوران میں ہم میں سے ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، مگر وہ چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک 4 سال کے بعد اسی جگہ پہنچ جائے۔ اس طرح ہم چاروں پھر سے مل جائیں گے۔ بڑے بھائی کی یہ تجویز سب بھائیوں کو پسند آئی اور وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم سب ایک ساتھ واپس گھر جا سکیں گے۔ ہم ایک ساتھ گھر سے آئے ہیں اور ہمیں اکٹھے ہی واپس جانا چاہیے۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر باپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے بعد چاروں بھائی آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور پھر ان میں سے ہر ایک الگ راستے پر چل دیے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کی سنیے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس قدر تیزی سے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب میں نوجوان نے بتایا، میں دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس آدمی نے دریافت کیا، جس پر نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر یا تجارت سیکھ کر اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ مگر وہ ہنر ہے کیا؟ نوجوان کے اس سوال پر آدمی بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ ایک ماہر اور چالاک چور کیسے بنا جاتا ہے۔ میں تمہیں چوری کا ایسا ہنر سکھا دوں گا جو آج تک کسی چور نے نہ سیکھا ہوگا۔ نہیں، میں یہ ہنر نہیں سیکھنا چاہتا، نوجوان جلدی سے بول پڑا۔ چوری اچھا ہنر نہیں ہے، اس کا نتیجہ آخرکار پھانسی کا پھندا ہوتا ہے۔ میں چوری کا ہنر سیکھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اوہ نہیں، تمہیں موت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ میں تو تمہیں صرف یہ دکھاؤں گا کہ کسی چیز کو اس طرح چرایا جائے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ آدمی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں ایسا ماہر چور بنا دوں گا کہ جس کی مثال نہ ہوگی۔ نہ ماضی میں اتنا ماہر چور گزرا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تمہیں چوری کرتے ہوئے کبھی کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ جب اس آدمی نے نوجوان کو یقین دلایا تو وہ چوری کا ہنر سیکھنے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں نوجوان کو چوری کرنے میں اس قدر ماہر بنا دیا
कि कोई दूसरा उसकी गर्द को न पहुंच सकता था। दूसरा भाई अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि उसे भी एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब में उसने बताया, मैं कोई हुनर सीखने जा रहा हूँ। इस तरह मैं अपनी किस्मत आजमाई करूंगा। तुम किस किस्म का हुनर सीखना चाहते हो? उस आदमी ने दरियाफ्त किया, जिस पर नौजवान ने सर हिलाते हुए बोला, ये तो अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कोई अनोखा हुनर सीखना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो तू मेरे साथ आ, मैं तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखाऊंगा। कौन सा हुनर, पहले मुझे बताओ। नौजवान के इस सवाल पर आदमी ने कहा, मैं तुम्हें नजूमी बनाऊंगा। सितारा शनासी एक आला दर्जे का हुनर है। अगर इसमें कोई महारत हासिल कर ले, फिर उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती। जब तुम एक माहिर नजूमी बन जाओगे तो तुमसे कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान सितारा शनासी का हुनर सीखने पर खुशी खुशी राजी हो गया और वो आदमी उसे अपने साथ ले गए। उसने नौजवान को इल्म नजूम सिखाना शुरू कर दिया और बहुत थोड़े अरसे में उसको माहिर बना दिया। इसी तरह वो कुछ अरसा वहां रहा और फिर एक दिन कहने लगा, आपने मुझे इल्म नजूम में माहिर कर दिया है, इसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मगर अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ये आईना अपने पास रखो। जमीन और आसमान पर जो कुछ हो रहा है तुम वो इस आईने में देख सकोगे और इस तरह कोई चीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो आईना ले लिया और रुखसत होकर चल दिया। अब तीसरे भाई का हाल सुनिए। वो अपने रास्ते पर सफर करता हुआ चला जा रहा था कि उसे एक शिकारी मिल गया। उसने जब नौजवान को जल्दी जल्दी जाते देखा तो पूछने लगा, ए नौजवान, तुम इस तरह जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं कोई हुनर सीखने के लिए घर से निकला हूँ ताकि अपनी किस्मत आजमाई कर सकूं। नौजवान ने जवाब दिया, जिस पर शिकारी बोला, अगर तुम हुनर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। तुम मुझे क्या हुनर सिखाओगे? नौजवान ने उससे पूछा, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा और ऐसा माहिर शिकारी बना दूंगा कि तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं जाएगा। तुम जिसका शिकार करना चाहोगे वो तुमसे बचकर निकल ना सकेगा। नौजवान को इसकी तजवीज़ पसंद आई और वो शिकार का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे शिकारी उसे अपने साथ ले गया और थोड़ी ही अरसे में उसे शिकार ने इस कदर माहिर बना दिया कि घने से घने जंगल में भी उसका निशाना खता न जाता था। नौजवान कुछ अरसे तक शिकारी के पास रहा, फिर उससे रुखसत चाहते हुए बोला, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे एक माहिर शिकारी बना दिया है, मगर मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। शिकारी ने खुशी खुशी उसे रुखसत की इजाजत दे दी और जब वो चलने लगा तो उसे एक कमान देकर बोला, ये कमान अपने पास रखो। जब भी तुम इस कमान से तीर चलाओगे तुम्हारा निशाना खता नहीं होगा, हमेशा ठीक ठीक शिकार को लगेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो कमान ले ली और शिकारी को खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। सबसे छोटा भाई भी अपने दूसरे भाइयों की तरह अपने सफर पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने नौजवान को इस तरह भागम भाग जाते देखा तो पूछने लगा, ये नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर से कोई हुनर सीखने के लिए निकला हूँ ताकि अपनी किस्मत आजमाई कर सकूं। नौजवान ने जवाब दिया। उस पर वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा। तुम मुझे कौन सा हुनर सिखाओगे, पहले मुझे बताओ। नौजवान के इस सवाल पर उस आदमी ने बताया, मैं तुम्हें दर्जी का हुनर सिखाऊंगा, तुम्हें दर्जी बनाऊंगा। मुझे दर्जी बनाओगे? नौजवान कदरे चौंक कर हैरानी से बोला, नहीं नहीं, मैं दर्जी नहीं बनूंगा, भले ये भी कोई हुनर है? सारा दिन आलती पालती मारकर बैठे रहो, सुबह से शाम तक सोई और स्त्री लिया आगे पीछे हिलते रहो। नहीं, ये काम मुझे पसंद नहीं है। नौजवान एक ही सांस में कहता चला जा रहा था कि उस अजनबी आदमी ने उसे टोक दिया, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आम किस्म का दर्जी नहीं बनाऊंगा। फिर किस किस्म का दर्जी बनाओगे? बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दर्जी का ऐसा हुनर सिखाऊंगा जो आज तक किसी को ना आया होगा। जब उस शख्स ने कहा तो नौजवान कुछ सोच में पड़ गया। अगरचे अभी तक उसे यह मालूम ना हो सका था कि वो उसे किस तरह दर्जी बनाएगा, लेकिन फिर भी वो राजी हो गया और उस शख्स के साथ चल दिया। फिर उसने वाकई नौजवान को ऐसा माहिर दर्जी बना दिया जिसकी मिसाल न थी। इस तरह वो कुछ अरसा उसके पास रहा। आखिर एक रोज उससे रुखसत होने की इजाजत तलब करते हुए कहा, आपने वाकई मुझे एक अनोखा हुनर सिखाया है जिसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उस आदमी ने, जो नौजवान का उस्ताद भी था, खुशी से इजाजत दे दी और एक सुई देते हुए कहा, यह सुई अपने पास रखो, तुम इससे हर चीज सी सकोगे, ख्वाह वो अंडे की तरह नाजुक हो या लोहे की तरह सख्त हो, इससे सीना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। और फिर यह भी है, इस सुई से सी हुई चीज का जोड़ा इस तरह आपस में मिल जाएगा कि किसी को पता ना चल सकेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ सुई ले ली और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। वक्त गुजरता रहा
और आखिरकार चारों भाइयों को एक दूसरे से जुदा हुए 4 साल पूरे हो गए। चुनाचे मुकर्ररा दिन पर वो सब के सब उसी चौराहे पर आ गए जहां से 4 साल पहले मुख्तलिफ रास्तों पर गए थे। चारों आपस में मिलकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे। हर एक ने अपनी अपनी दास्तां सुनाई और ये बताया कि उसने कौन सा हुनर सीखा है। इस तरह वो चारों इकट्ठे होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कहने लगे, हमें जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए, हमारा बाप हमारे इंतजार में होगा। और फिर जब वो घर पहुंचे तो उनका बाप उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बारी बारी सबको गले लगाया और प्यार किया। चारों बेटों ने बाप को अपने अपने हालात बताए और अपने सीखे हुए हुनर के बारे में तफसील बयान की। इस तरह एक बार फिर से वो सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक रोज का जिक्र है। चारों बेटे अपने बाप के साथ घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि उनका बाप कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम सबका इम्तिहान लूं और देखूं कि क्या तुम उसी तरह अपने हुनर में माहिर हो जैसे कि तुमने मुझे बताया है। हम ये बात साबित करने के लिए तैयार हैं। चारों बेटे एक साथ बोल पड़े। जैसे ही बाप ने बेटों को इम्तिहान के लिए तैयार पाया, उसने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से कहा, इस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का घोंसला है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कितने अंडे हैं? अभी बताता हूँ। बेटे ने यह कहकर जल्दी से अपना आईना निकाला और उसमें देखते हुए बोला, घोंसले में 5 अंडे हैं। यह सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानब देखा और कहने लगा, इस वक्त उन अंडों पर चिड़िया बैठी हुई है और उन्हें सी रही है। क्या तुम दरख्त पर चढ़कर ये अंडे चिड़िया के नीचे से निकाल कर ला सकते हो? यकीनन ला सकता हूँ, बड़े बेटे ने जवाब दिया, मगर अंडे इस तरह सफाई से लाना कि चिड़िया को पता तक न चल सके। बिल्कुल ऐसे ही होगा। यह कहकर बड़ा बेटा उसी वक्त उठा और जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर नीचे आ गया और बाप से कहने लगा, मैंने इस महारत से चिड़िया के नीचे से अंडे निकाले हैं कि उसे पता भी नहीं चला। अभी तक वो यही समझ रही है कि अंडों पर बैठी है। बाप ने उससे 5 अंडे लेकर मेज पर इस तरह रख दिए कि 4 मेज के कोनों पर थे और 5वां आयन दरमियान में रखा हुआ था। उसके बाद वो शिकारी बेटे से बोला, क्या तुम इन 5 अंडों को एक ही निशाने में काट सकते हो? क्यों नहीं, मगर निशाना ऐसे लगना चाहिए कि हर अंडे के 2-2 टुकड़े हों, इससे ज्यादा नहीं, और 5 अंडे एक ही निशाने में 2 लख्त हों। आप बेफिक्र रहें, ऐसे ही होगा। यह कहकर उसने अपनी कमान संभाली और चिल्ले पर तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना बांधा कि वाकई एक ही तीर से 5 अंडे 2-2 हिस्सों में कट गए। ये देखकर बाप बहुत खुश हुआ। बहुत खूब, तुम भी अपने इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब उसने चौथे बेटे की तरफ देखा जो माहिर दर्जी था। बेटे, तुम्हारे भाई तो अपने अपने इम्तिहान में कामयाब रहे, अब तुम्हारी बारी है। मैं भी हाजिर हूँ, आप मेरा इम्तिहान भी ले सकते हैं। चौथे बेटे ने जवाब दिया, जिस पर उसका बाप कहने लगा, इन अंडों को इस तरह से सी दो कि उनके अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनके जिस्म भी जुड़ जाएं और उन्हें कोई नुकसान भी न पहुंचे। अंडों के खोल देखने से भी पता न चले कि उन्हें सिया गया है। ठीक है। नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी मुहारत से तमाम अंडों को सी दिया। उसने अंडों को इस कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अंडे 2 लख्त करके दोबारा जोड़े गए हैं। बाप ने जब ये देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इस तरह सफाई से रखाओ कि उसे खबर तक ना हो। मैं अभी रखाता हूँ। चुनाचे चंद ही लम्हों बाद उसने ये काम भी कर दिखाया और चिड़िया को एहसास तक ना हो सका कि वो जिन अंडों पर बैठी हुई है वो उसके नीचे से निकाल कर दोबारा रख दिए गए हैं। वो इसी तरह बैठी उन्हें सीती रही, यहाँ तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दनों पर एक सुर्ख धारी थी जो अंडों को दोबारा सीने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। नौजवानों का बाप अपने बेटों के हुनर और उनकी महारत से इंतहाई खुश था। उसने चारों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपने फन में इस कदर महारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इतना कहकर उसने बेटों के कांधों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम में से किसको इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की महारत से कुछ हासिल कर सकोगे। ऐसा वक्त यकीनन आएगा। किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी ज़ाया नहीं जाता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि मुल्क में हर तरफ एक शोर सा बरपा हो गया। पता चला कि शहजादी को एक अजदहा उठा कर ले गया है। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ही ये ऐलान
उन चारों भाइयों ने सुना, वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने का यह बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह वो शहजादी को अजदेह के जंगल से वापस लाने के लिए तैयार हो गए। नजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहाँ है और किस हाल में है। यह कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और थोड़ी देर तक उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। कहाँ है शहजादी? कुछ हमें भी तो बताओ, दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा। जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समंदर की एक चट्टान पर बैठी हुई है और उसके करीब अजदहा बैठा पहरा दे रहा है। हमें फौरन रवाना होना चाहिए। सब ने कहा और वो चारों बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने पहले झुककर सलाम किया और फिर अर्ज किया, हुजूर, हम शहजादी को अजदेह से छुड़ा कर लाएंगे। लेकिन लेकिन क्या? कहो, तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह ने उसकी बात काटकर जल्दी से पूछा। वो बेचारा तो बेटी के गम में निढाल हो रहा था और चाहता था कि कोई भी हो किसी तरह शहजादी को वापस ले आए। वो अपनी बेटी के खातिर बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार था। तुम जो इनाम मांगोगे हम देंगे, सिर्फ हमारी बेटी वापस ले आओ। जब बादशाह ने यह कहा तो चारों नौजवान ने दरख्वास्त की कि हुजूर, हमें एक बहरी जहाज की जरूरत है, क्योंकि शहजादी इस वक्त समंदर में है और वहां तक जाना आसान नहीं है। तुम्हें जहाज भी फराहम कर दिया जाता है। बादशाह ने इतना कहते ही हुक्म दिया कि इन नौजवानों को बगैर किसी ताकीर के इसी वक्त एक बहरी जहाज दिया जाए ताकि ये शहजादी को बचाने के लिए सफर पर जा सके। बादशाह के हुक्म की देर थी। उसी वक्त चारों भाइयों को बहरी जहाज फराहम कर दिया गया और वो सब उसमें सवार होकर सफर पर चल दिए। इसी तरह सफर करते करते आखिर वो उसी जगह पहुंच गए जहां शहजादी थी। उन्होंने देखा कि वो एक चट्टान पर बैठी थी और अजदहा उसकी गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे इस पर तीर नहीं चलाना चाहिए, कहीं शहजादी को नुकसान न पहुंचे, शिकारी भाई ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर मुझे अपना हुनर आजमाना चाहिए, चोरी का माहिर भाई बोला। हाँ ठीक है, इस वक्त तुम्हारा हुनर ही काम आ सकता है, दूसरे भाइयों ने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा और वह एक छोटी कश्ती पर बैठकर समंदर में आगे बढ़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंच गया जिस पर शहजादी बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने इशारे से शहजादी को खामोश रहने के लिए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके पास चला गया। उसने देखा अजदहा उसकी गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सोया हुआ था और शहजादी सहमी हुई थी। नौजवान ने अपने हुनर की महारत दिखाई और शहजादी को बड़ी आस्जगी से अजदहे के सर के नीचे से इस तरह निकाल लिया तो उसे खबर तक ना हो सकी। वो अभी तक उसी तरह सोया हुआ था। नौजवान शहजादी को लेकर जल्दी जल्दी कश्ती तक पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, जैसे बादल गरज रहे हो। इस दौरान में अजदहा नींद से बेदार हो गया था और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। उस वक्त वो इस कदर जोर जोर से चुंघाड़ रहा था कि शहजादी के औस्तान खता हुए जा रहे थे। फिर देखते ही देखते वो कश्ती के करीब पहुंच गया, मगर बेशतर उसके कि वो कश्ती पर झुपड़ता। दूर जहाज पर खड़े शिकारी भाई ने निशाना बांधकर तीर चलाया जो सीधा जाकर उसके दिल पर लगा। थोड़ी देर तक अजदहा तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अजदहे खत्म हो जाने से खतरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि तड़पने के दौरान वो कश्ती से कई बार टकराया था। वो इतना कभी हैकल समंदरी जानवर था कि उसके टकराने से कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इस तरह आप नौजवान शहजादी को एक तख्ते पर बिठा कर तैर रहा था। ये देखकर उसका वो भाई जो माहिर दर्दी था तैरता हुआ उनके पास आया और उसने तैरते हुए जल्दी जल्दी टूटी हुई कश्ती के तख्ते जमा किए। उसके बाद उसने अपनी सुई निकाली और बड़े बड़े बखिए लगाकर फिर से कश्ती को जोड़ दिया। यह काम उसने इतनी जल्दी किया था कि शहजादी उसकी महारत से हैरान रह गई। जैसे ही कश्ती दोबारा बन गई, उन्होंने शहजादी को उसमें बिठाया और कश्ती खेते हुए जहाज तक पहुंच गए जहां उनके दूसरे भाई मुंतजिर थे। उन्होंने जहाज में खींच लिया और फिर सब खुशी खुशी वापस चल दिए। जब चारों भाई शहजादी को जिंदा सलामत लेकर बादशाह के दरबार पहुंचे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो दीवाना बार अपनी बेटी से लिपट गया और उसे प्यार करने लगा। उसने चारों नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने शहजादी की जान बचाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हमें तुम्हारी बहादुरी पर फख्र है। जवाब में चारों भाइयों ने सर झुका लिया। वो उस वक्त अपने दिल में खुश हो रहे थे कि उनका सीखा हुआ हुनर काम आ गया है। उनकी 4 साल की मेहनत जाया नहीं हुई। वो खामोश खड़े थे कि बादशाह बोला, हमने वादा किया था कि जो शख्स शहजादी की जान बचाएगा वही उसका शोहर बनेगा, मगर अब मैं हैरान हूँ। उसने इतना कहकर बारी बारी चारों नौजवानों को देखा और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम चारों ने शहजादी की जान बचाई है और अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम में से किसकी शादी शहजादी से की जाए। दरबार के अमीर वजीर भी हैरान थे, क्योंकि शहजादी चारों की मुश्तरका कोशिशों से जिंदा वापस आई थी।
वो सब आपस में सरगोशियां कर रहे थे। इतने में बादशाह ने कहा, यह बात हम तुम पर छोड़ते हैं, तुम खुद ही आपस में फैसला कर लो कि शहजादी की शादी किससे की जाए। जैसे ही बादशाह ने कहा, चारों भाई आपस में झगड़ने लगे। नजूम का माहिर कहने लगा, अगर मैं अपने इल्म से यह मालूम न करता कि शहजादी कहाँ है तो वो वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए शहजादी पर मेरा हक है। इस पर चोरी में माहिर भाई बोला, अगर मैं अजदहे के सर के नीचे से शहजादी को निकाल कर न लाता तो तुम्हारा इल्म बेकार था, लिहाजा शहजादी पर मेरा हक बनता है। शिकार में माहिर नौजवान ने कहा, अगर मैं अजदहे को हलाक न करता तो तुम और शहजादी दोनों मौत के मुंह में चले जाते, इसलिए शहजादी से शादी मैं करूंगा। और जो भाई धरती के फन में माहिर था वो कह रहा था, अगर मैं टूटी हुई कश्ती को जोड़कर दोबारा न बनाता तो शहजादी का जिंदा आना मुमकिन ही नहीं था, लिहाजा इससे मेरी शादी होनी चाहिए। इस तरह वो चारों दलीलें देने लगे और शहजादी पर अपना अपना हक जिताने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। ये देखकर बादशाह ने सोचा, उनका फैसला होना मुश्किल है। उसने चारों को खामोश कराया और कहा, इस तरह तो तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता। बेहतर यह है कि तुम चारों शहजादी से शादी करने के हक से दस्तबरदार हो जाओ, यही एक तरीका है। फिर उसने बताया, हकीकत यह है कि शहजादी एक दूसरे नौजवान से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। अगर तुम लोग इस हक से दस्तबरदार हो जाओ तो हम तुम चारों को अपनी आधी सल्तनत दे देंगे। ये तुम सबके हुनर का सिला होगा। बादशाह की यह बात सुनकर चारों भाई सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, बादशाह सलामत की तजवीज़ दुरुस्त है, इस तरह हम सब खुशहाली से जिंदगी बसर कर सकेंगे और अपने बाप को भी आराम पहुंचाएंगे। भला ऐसी लड़की से शादी करने से क्या फायदा जो किसी दूसरे से मोहब्बत करती हो। उसके बाद चारों ने सर झुकाकर अर्ज किया, हुजूर, हमें आपकी तजवीज़ मंजूर है। चुनाचे बादशाह ने चारों भाइयों को अपनी आधी सल्तनत बख्श दी और वो बाकी जिंदगी अपने बाप के साथ खुशहाली और दौलत में बसर करने लगे। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, देखा आपने कि कैसे नौजवान अपने हुनर की वजह से बादशाही के मालिक बन गए। हुनर जैसी बादशाही कहीं नहीं होती, इसलिए आप भी हुनर सीखें। हुनर चाहे कौन सा भी हो, हुनर हुनर होता है। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए और हमारी कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।